Let's begin with this first topic, that is rise of Islam in Arabia, faith, community and politics. Okay. So during your 612 to 632, Prophet Muhammad preaches the worship of a single God, Allah, and the membership of single community of believer, Ummah. So in this paragraph, some of the important lines were given. First of all, this particular line, that the timeline of Prophet Muhammad, okay, and what he preaches मतलब होता है the messages or the enlightenment that he got from God, okay, and then he preaches their peoples, okay, their membership. So they wanted to know that only the single God, Allah, and the membership of a single community of believer, Ummah. So single community believer is simply means a group of people who are believing in a single God and who have a single idol. They were known as community of believer, and in Islamic language they were known as your Ummah. Okay, the name is given here, you can underline it. Okay, the next point which we have discussed here is Muhammad was an Arab by language and culture and merchant or by profession. So Prophet Muhammad was, according to language, he was Arabic, but according to culture and or a profession, he was a merchant. Okay, merchant is means that he is a trader who sell his goods and other things from one place to another. That simply means he always move from one place to another for his profession work. Okay, during the 6th century, the Arab culture was broadly confined to the Arabian Peninsula and the areas of southern Syria and Mesopotamia. So these were the areas at the 6th century that is covered by your Islamic peoples. Okay, so the area you can see in your map, that is this type of design in your map you can see. So this portion is known as your Arabian Peninsula. I hope this will be clear to you. Now coming to the next paragraph, it is in the page number 79. Okay, here we will discuss a lot of things which is about the Arabian Peninsula and the Islam. First of all, the Arabs, were they were rulers, were they were citizens, okay, were they living in a cities area, were they were in a rural area, what they were. So they were basically divided into tribe, okay, they were basically divided into tribes, okay, and these tribes were known as kabilas. So these tribes were known as kabila and each tribe have their own leader. Okay, obvious सी बात है कि ट्राइब के लीडर होते थे और ये लीडर कैसे चोजन होते थे. सो दे वर पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली कनेक्शन, कितना ज़्यादा दे वर कनेक्टेड विद द फैमिली. द पर्सनल करेज होता है, how brave, how confident and how leadership quality they have. Second, the things is here, he must be a generous person, that is generosity will be there, that is not so egoistic, not so angry. So he must be a generosity. Okay, secondly, these tribes have their own god and goddesses where they worship, and these idols or god were termed as Sanam in the Arabian language. They will place these idols or a god in a shrine. Shrine होता है एक place जहाँ पे अपने आप god को रखते हैं. ठीक है. As I told you that Arabs were tribes, so they were nomads by the culture. So they were nomads by the culture, and they moved from one place to another in search of the pasture for their animals and food for themselves. And food at that in a desert area is the dates. You know what is dates? Date is khajur. Okay. ओइसिस क्या होता है बच्चे? ओइसिस होता है वो चीज़, सपोज
डेजर्ट एरिया में एक ऐसा एरिया जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर है, जहाँ पे प्लांट पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, उस एरिया को आप कहते हैं ओएसिस। वेरी गुड। जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी खाने के लिए, आपके एनिमल्स के लिए और आपके जानवरों के लिए। ओके, दैट सिंपली मीन्स। ओके, नाउ वी कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अबाउट द मोहम्मद। ओके, अबाउट मोहम्मद, मोहम्मद के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मोहम्मद, what his own tribe, so his tribe name was known as Quraysh, lived in the Makkah and controlled the main shrine there, a cube-like structure called Kaaba, in which the idol were placed. Okay, so आपके जो मोहम्मद थे उनके ट्राइब का नाम था क्वाश, जो कि पहली बार मक्का में ही, तो मोहम्मद सबसे पहले मक्का में ही थे। हम मदीना के जो बारे में चीज़ें हैं वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद के ट्राइब का नाम क्वारिश था, ये मक्का में ही रहते थे। इनके श्राइन में, यानी कि इनकी जहाँ पे आइडल रखना चाहिए वो वहाँ पे एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, दैट सिंपली डिफाइन देयर रिलीजियस आइडल। ओके, now the tribes outside the Makkah consider the Kaaba a holy and install their own idol at this shrine, making the annual pilgrimage Hajj to the shrine. अब मक्का की क्या बात है, मक्का की जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, दे ऑल्सो बिलीव इन द काबा, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे ये भी विश्वास कर रहे थे। एंड ड्यू टू दिस दे प्लेस देयर आइडल इन द सेम श्राइन, मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज टू दिस श्राइन, और साल में एक बार, जो कि कंपलसरी है आपके रिलीजन में, सो दे हैज़ टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड एनुअल पिलग्रिमेज, दैट इज़ हज की यात्रा, ठीक है। ये वर्ड हज जो है एक एनुअल पिलग्रिमेज है, मुस्लिम में ये कंपलसरी है, आपको जाना ही जाना होता है। अब आते हैं हम दूसरी टॉपिक पे, दैट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मक्का कंसिडर द Kaaba as a holy install. Makkah was located on the crossroad of the trade route between Yemen and Syria. अगर आप अपने मैप में देखें तो यमन यहाँ है, सीरिया यहाँ है, बीच में आपका मक्का और मदीना है, जो कि एक क्रॉस रोड में पड़ता है ये चीज़, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और बढ़ जाती है, ठीक है। Now the next paragraph is discussing about the Makkah shrine was a sanctuary. Okay, sanctuary is simply means, let me tell you. Okay, this सेंचुरी वो चीज़ होती है, वो एरिया, हारम वो एरिया होता है जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट किया जाता है और जहाँ पे वायलेंस नहीं होता है। तो मक्का का जो श्राइन था वो एरिया वो इस तरीके से कंसीडर होने लगा, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट थिंग इज the nomadic and the settled tribes opportunity to communicate with one another and share their beliefs. So due to the annual pilgrimage, people come here in the Makkah area and share their customs, commerce and other opportunity of their religion. ऑल्दो द पॉलिटिक्स, ओके, ना पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स अगर हम इस पैराग्राफ की बात अभी करेंगे, सो पॉलिटिक्स होता है बच्चे वो लोग या द पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज द वर्शिप ऑफ और अ बिलीव इन अ मल्टीपल गॉड, वो लोग जो एक से ज़्यादा भगवान पे विश्वास या बिलीव रखते हैं उनको आप पॉलिटिक्स कहते हैं। वॉज वर्गली फेमिलियर मतलब होता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इसका मतलब होता है, तो ऐसे लोगों का इनडेफिनेट होते थे, यानी कि अनसर्टेन होते थे कि इनका खुद का सुप्रीम गॉड कौन है। सुप्रीम गॉड यानी कि वन ऑफ द, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं आपके कुल के भगवान कौन है, तो ये दे बेसिकली चेंज देयर गॉड, ओके, एज दे वर बिलीविंग इन सो मेनी गॉड्स, ओके। Due to this, the influence of Jewish and the Christian tribes living in this Midwest, their attachment to the idol and the shrine was more immediate and stronger. जिसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम जूइस और क्रिश्चियन की थी, जिसकी वजह से मुस्लिम का जो इस्लाम धर्म है वो ज़्यादा फ्लरिश करने लगा, बिकॉज दे वर वेरी फोकस्ड दैट दे ओनली हैव अ वन सुप्रीम गॉड, दैट इज़ योर यस अल्लाह, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे,
नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो अराउंड 612 मोहम्मद डिक्लेयर हिमसेल्फ टू अ मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, जिसको हम रसूल कहते हैं। रसूल इस्लाम का वर्ड है, मैसेंजर ऑफ गॉड जब आप कहते हैं अपने आप को तो आपको कहा जाएगा इस्लाम में रसूल। तो 612 में इन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप, इन्होंने ये भी प्रीच किया, यानी इन्होंने ये भी चीज़ बताई कि अल्लाह को अलग से ही हमें एक ही मान करके इन्हें वर्शिप करना चाहिए। इनके जो रिचुअल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। पहला रिचुअल था इनका डेली प्रेयर, आपको सालत करना है रोज़। मॉरल प्रिंसिपल सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग एलम एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम थ्रेड, आपको दान देना चाहिए और एब्सटेनिंग फ्रॉम थिफ यानी कुछ चोरी चकारी से आपको दूर रहना चाहिए। मोहम्मद वॉज टू फाउंड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर उमा bound by a common set of religion belief. Community would bear a witness of Sahada to the existence of a religion before God as well as before the member of other religion community. The Muhammad messages particularly appeal to those Makkans who felt deprived of the gain from the trade and religion and were looking for a new community. So मोहम्मद का एक पर्टिकुलर एम था कि देन ही स्टार्टेड फॉर्मिंग एन उमा एंड इन दिस अ कॉमन सेट ऑफ रिलीजियस बिलीवर वर इनवाइटेड, ठीक है। कम्युनिटी को ये इन्होंने कहा कि कम्युनिटी एक विटनेस है आपके किसी भी रिलीजन या आप किसी के गॉड के लिए। तो वो जो लोग थे मक्का में जो कि डिप्राइव थे अपने कॉमर्स अपने इकोनॉमी लाइफ से एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द अदर रिलीजन, सो मोहम्मद वर ट्राइंग टू मेक देम टू फॉलो देयर रिलीजन देयर कम्युनिटी देयर उमा, ओके। एंड ड्यू टू दिस दोज हु एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन वर कॉल्ड मुस्लिम, सो जो लोग इस प्रथा को मानते थे इनके रिलीजन में विश्वास करते थे दे वर कंसिडर एज दे वर कॉल्ड एज मुस्लिम। सो अब आप देख सकते हैं कि मुस्लिम किसको कहा गया है, मुस्लिम उनको कहा गया है जो इस्लाम के धर्म को इस्लाम के डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन होता है सिद्धांत, उनकी जो चीज़ें हैं उनको अगर मानते हैं तो आप मुस्लिम कहलाते हैं। दे वर promised to salvation on the day of judgment क़यामा एंड शेयर अ रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी वाइल ऑन द अर्थ। तो ये भी चीज़ कहा गया है कि मुस्लिम के जो प्रिंसिपल है ये भी है कि अगर आप डे ऑफ जजमेंट यानी कि क़यामत की रात के दिन जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपना जो भी चीज़ है वो शेयर कर रहे हैं तो आप सल्वेशन को प्राप्त करेंगे, यानी कि आप जो है भगवान को जान लेंगे, समझ लेंगे, लाइफ का एक्चुअल ट्रुथ जान लेंगे और जो भी चीज़ें आपके अर्थ पे हैं वो आपको शेयर करनी है। द मुस्लिम सून फेस द कंसिडरेबल अपोजिशन फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट affluent Makkans who took offense to the rejection of their deities and found the new religion a threat to the status and the prosperity of Makkah. सो मुस्लिम्स को वहाँ पे अब एक थ्रेड या एक एफ्लुएंट यानी कि प्रचुर मात्रा में उनका विरोध होने लगा मक्का में, क्योंकि मक्कन्स में जो लोग रहते थे जिनका अलग रिलीजन था दे वर टेरिफाइड बिकॉज दे वर फ्लरिशिंग इन देयर एरिया, मतलब इस्लाम धर्म जो है वो मक्का में फ्लरिश हो रहा है, जो वहाँ की रिलीजन है वो वहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसकी वजह से लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खिलाफ रहे, जिसकी वजह से 622 में मोहम्मद वॉज फोर्स्ड टू माइग्रेट विद देयर फॉलोअर टू द मदीना, जिसकी वजह से मोहम्मद को ये कहा गया कि आप यहाँ से दूसरी जगह चले जाइए, फोर्स किया गया, ठीक है, और वो 622 में मदीना चले गए। द जर्नी फ्रॉम मक्का वॉज a turning point in the history of Islam with the year of his arrival in the Medina making the beginning of Muslim calendar। और ये मूवमेंट मोहम्मद का फ्रॉम मक्का टू मदीना कहा जाता है, मक्का को हिजरा कहा जाता है। तो ये जर्नी जो थी इस जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट है आपकी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में, और मदीना से जब ये मदीना पहुँचे तब आपका मुस्लिम कैलेंडर शुरू होता है, ठीक है। तो स्टोरी जो है वो शुरू हो रही है आपकी, यानी कि अर्ली इस्लामिक स्टेज जो है वो आपका मक्का से शुरू हो रहा है
and it is following by in your Medina area. Okay, now coming to the next page.